whatever careers that we are going to discuss today, let me tell you, you might not have even heard of them before. So there are so many careers beyond the range. Like we are aware about 10 to 12 careers, while the actual career that we count in the world, there are more than 6,500 careers. So you can understand that I won't be able to cover all 6,500 careers, but yes, we'll surely go beyond 12 careers. We'll surely talk about something that is interesting, something that is connected to our passion, maybe something that we can develop ourselves towards that. So based upon the informations, you will be able to understand yourself and decide what career path you need to follow. So, when we are talking about career counseling, we are talking about understanding ourselves. In case we can understand ourselves, it will be very easy for us to pick out a career without having any kind of hassle. अभी करियर कैसे चुना जाता है? अभी करियर ऐसे देखा जाता है कि वॉट एवर सक्सेस वी हैव सीन इन द सोसाइटी अराउंड अस, which is primarily based out of computer sciences या being a doctor या being a chartered accountant, उसके ऊपर हम सोचते ही नहीं है, या है कुछ इसके ऊपर विजन. So even the toppers, those who have scored those 100 out of 100, 99 out of 100, scoring 499 out of 500, right? I am sure they are a programmed kind of students. Even if they are toppers, you ask them what they want to do in future, they will be only able to tell you, most of them would be able to tell you that I want to do computer engineering, or I want to be a doctor, or I want to be an IS officer, for the sake of just telling whatever it is known around in the society. So when we talk about careers, we have to talk about core abilities that we have. कितना मिसमैच है आपको नहीं लगता कि एस्पिरेशन और एबिलिटी में? हमारी एबिलिटी कुछ होती है और एस्पायर हम कुछ और करते हैं, isn't it? हमारी एबिलिटी इज मे बी वी आर वेरी क्रिएटिव, राइट? वी मे बी वेरी क्रिएटिव, लेकिन हम फिर भी पाथ कौन सा फॉलो करते हैं? कन्वेंशनल. क्रिएटिव होने के बावजूद we are not having that strength, we are not having that confidence to pick out a career just because of job insecurity. या हमको ऐसे प्रोग्राम कर दिया गया है कि हमें सिर्फ सैलरी पैकेजेस लेने हैं. फॉरगेट अबाउट व्हाट इज योर पैशन, व्हाट एवर यू लव, फॉरगेट अबाउट दैट, इजंट इट? सो कहना बहुत आसान है, डू व्हाट यू लव, बट इंप्लीमेंट करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. आप लोगों को काउंसिल करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को. यू विल हैव टू टॉक टू देम दैट आई वांट टू डू दिस, मे बी आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर. जवाब आएगा ये क्या होता है? Do a set program called engineering, that's it, right? But today we are going to uncover lot of career options that probably would be of interest to you. I am sure you will be able to connect with them, right, in case we try to talk about them. Before I start talking about career informations, I want you to delve into few introspective questions here. What have you always been naturally good at? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा है कभी? What is it that you are naturally good at? Right? Where you are your own cheetah, right? Which area? Natural ability. You don't have to be trained for that. What is that ability? क्या natural ability है? And let me tell you, all of you are unique.
एक की एबिलिटी दूसरे से मैच नहीं करेगी, बट स्टिल हम लोग करियर्स मैचिंग लेते हैं, जबकि वी ऑल आर इंडिविजुअली डिफरेंट. साइंस सेज दैट किसी के भी जीन्स एक जैसे नहीं होंगे, सब अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, लाइकिंग्स अलग है, प्रेफरेंसेस अलग है, टेस्ट अलग है, एप्टीट्यूड अलग है, इंटरेस्ट अलग है, स्किल सेट्स अलग हो सकते हैं. वी आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नेचुरल एबिलिटी क्या हुई? समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन. You don't need much help from others. Are you getting that? So what is it that I can do on my own? इसका सबसे आसान तरीका क्या है to find out your natural ability? कहां आपको इंडिपेंडेंट काम करने की आदत है? आप डिपेंडेंसी आपकी है ही नहीं किसी के ऊपर. चाहे वो आपका पैशन आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, चाहे वो आपकी स्टाइलिंग हो सकती है, चाहे आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, राइट? चाहे तो म्यूजिक हो सकता है. मे बी यू कैन बी अ वेरी गुड सिंगर, नेचुरली गिफ्टेड सिंगर, or a musician, or a sculptor, someone who can work on any material, who can create things, someone who is a maker, innovator. ये एबिलिटीज कहां से आती है? नेचुरल होती है. इसके लिए ठीक है, ट्रेनिंग्स आपको बाद में चाहिए, बट टू स्टार्ट विद यू हैव समथिंग इन हैंड. दैट इज वी कॉल नेचुरल एबिलिटी. What do you enjoy learning? What do you enjoy learning most? क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद है सीखना? पढ़ने के बाद किसको कितनी खुशी होती है, ये बताओ मुझे. फिर भी करियर्स हम सारे एकेडमिक ढूंढते हैं. ये कब चेंज लेकर आओगे आप हमारी सोसाइटी में, वेयर हम करियर्स अपनी चॉइस से पिक कर पाए, ना कि जहां हम ऑलरेडी दुखी हैं. एवरीबडी इज नॉट अ टॉपर हियर, राइट? इस पूरे ग्रुप में इफ आई हैव टू सर्च फॉर कि ठीक है एकेडमिक करियर किसका बनेगा, तो ठीक है 2-3 टॉपर्स मिल जाएंगे. बाकी लोग यहां क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. एंड कहीं ना कहीं फॉलो करने में, एक दूसरे को देख के फॉलो करने में वहां गलतियां कर बैठेंगे. बिकॉज इंडिविजुअली यू ऑल आर डिफरेंट. अगर यहां आप 100 लोग हैं, सो 100 करियर्स कैन बी डिस्कस्ड. ईच वन ऑफ यू कैन हैव अ डिफरेंट करियर, एंड दैट इज द पावर ऑफ काउंसलिंग सेशंस. दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट. लैक ऑफ काउंसलिंग लीड्स टू मॉब, लीड्स टू अ क्राउडेड स्पेस. आज अगर 15 लाख लोग जेई का ही एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज लैक ऑफ करियर काउंसलिंग. दे हैव नो आइडिया अबाउट अदर करियर्स. नहीं तो वो लोग को ऐसा नहीं कि सबको जेई में ही बैठना है. नीट 20 lakhs फॉर हाउ मेनी सीट्स? 5,000 सीट्स. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 620 के ऊपर का स्कोर आता है तो जाके कहीं कोई आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है. एंड बहुत सारी बातें करेंगे हम अपन ऐसी, राइट? लाइक व्हाट आर यू नोन फॉर? आपको किस काम के लिए जाना जाता है? व्हाट पीपल प्रेज फॉर यू? आपके लिए क्या प्रेज आती है? किस काम में प्रेज आती है कि हाँ भाई ये बहुत शरारती है, ठीक है, वो बात आ गई आपके लिए. सो किसी भी काम के लिए यू आर नोन फॉर.
स्पोर्ट्स के लिए हाँ भाई दिस पर्सन इज देयर, एक्टिंग के लिए यस वी हैव दिस पर्सन, आर्टिस्टिक ड्राइंग स्केचिंग के लिए वी हैव दिस पर्सन, फैशन के लिए वी हैव दिस पर्सन, कंप्यूटर वर्क एडिटिंग के लिए वी हैव अनदर पर्सन। कितनी सारी स्किल सेट्स हो सकती है दैट वी कैन वर्क ऑन। व्हाट यू आर नोन फॉर, जरा ये तो सोचो अपने बारे में, अपने से पूछो व्हाट यू आर नोन फॉर, किस बारे में बात होती है आपके बारे में। These are very important questions that you should ask from yourself, right? Then what are your top 3 values or things you hold closest to your heart? क्या ऐसी बातें हैं, कौन सी वो वैल्यूज हैं? Is it like I want to earn lot of money? That is one value system I want to have. Another is no, I want to be into glamour and entertainment industry. I am like that. This is what I like. I love Epicurean delights. I love food. I love entertainment. I love fun. क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं आपके? I need time for myself. I want to have that profession where I have time for myself. अपने लिए समय है, फैमिली के लिए समय है, वर्क लाइफ बैलेंस देख रहा हूं मैं तो. दिस इज माई वैल्यू सिस्टम. सो क्या वैल्यूज लेकर आप आगे चल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये नहीं कि वैल्यू कुछ है और काम हम कुछ और कर रहे हैं. रिपोर्ट्स आर रेगुलरली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, एंड हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ना पसंद नहीं करते वैसे, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं 80% ऑफ आवर ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल. 80% of our graduates are not employable. Why? Because everybody is trying to nudge the same gate. सभी एक गेट से निकलना चाहते हैं, एक ही क्राउड में रहना चाहते हैं. तो ठीक है, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आएगा. जो आप 100 में से जो सबसे बढ़िया होंगे 20 लोग, उनको जॉब मिल जाएगी, 80 लोग आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे. Am I talking sense or is it appealing to you or not? Are you understanding this aspect? Or am I speaking maybe beyond your thought process? Or am I underestimating you or overestimating you? Probably. You can give me the feedback. Sir, ये हमारे ऊपर से जा रहा है, बता सकते हो. और समझ में आ रहा है तो that is good. You can always nod your head. That's okay. Right? So, I hope you understood these introspective questions and you will definitely raise these questions to yourself. Okay? Right. कुछ करियर मिथ्स हैं. बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करी जाती है, मिथ्स है वो, सही बातें नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. आपसे कह दिया जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल. कर सकते हो यार, तुम कर सकते हो. तो ठीक है भाई, फिश को आप पेड़ पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं, कैसे हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? राइट. सो देर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन पैरामीटर्स, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड. कुछ प्रीमाइसेस होती हैं जिनको आप पार नहीं कर सकते, और ये जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना आसान हो जाएगा. ऑब्सेशन में नहीं जाओगे. आई वॉज रीडिंग वन न्यूज पेपर फ्यू डेज बैक, उसमें यह लिखा हुआ आया दैट अ जेंटलमैन 47 years of age, 73 attempts prelims of IAS, राइट. वो अटेम्प्ट ही देते जा रहे हैं. ऑब्सेशन, ऑब्सेशन को क्या बोलेंगे? पागलपन. 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट. भाई कहीं तो बाउंड्री, ड्रॉ द लाइन. यू हैव टू ड्रॉ द लाइन और नॉट. यार ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी. या जब एज निकल गई तो आपके साथ क्या कर सकते हैं फिर कोई?
सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बहुत फ्लावरी स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स लगती हैं सुनने में, राइट, बट देयर आर लिमिटेशंस। किसी भी सिस्टम की लिमिटेशंस होती है। इवन जिस कंट्री में आप रह रहे हो, डेमोक्रेसी ऑल्सो हैज लिमिटेशंस, राइट। हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। पीसीएम लेने से बेस स्ट्रांग बन जाता है, तो फिर इतने लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हो जाते हैं? पीसीएम लेने से अगर बेस बन जाता है तो फिर ठीक है, फिर तो आप सारे ही पीसीएम ले लो, चाहे आपका मैथ ठीक हो या ना हो, चाहे आपको रोज ट्यूशंस पढ़नी पड़े, राइट। एग्जाम में इस बात का हमेशा डर रहे कि हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, right? Still, we would like to go with. There is no harm in taking PCM if you have the right talent towards it. But कोई ये कहे कि PCM लेने से बेस बन जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स का कोई मायने नहीं है, ये गलत बात है। This is a myth. Similarly, मैथ्स अच्छा नहीं है तो पीसीबी ले लो, वेरी सिंपल, बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे यह बताइए, किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है तो फिजिक्स अच्छा होगा क्या? अब मैथ्स अच्छा नहीं था, मैथ्स छोड़ दिया, पीसीबी ले लिया, फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स वीक था तो फिजिक्स वीक रहेगा, नीट कैसे क्लियर करोगे? बायोलॉजी इज नॉट अ चैलेंज, चैलेंज इज फिजिक्स। एंड आप लोग की नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, बिकॉज आई डू डील विद इंटरनेशनल एडमिशंस एंड आई डू अप्लाई स्टूडेंट्स फॉर सम ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड। सो वहां पर एक सिंपल रूल है, आपको साइंस पढ़ना है, यस और नो बोलिए, साइंस पढ़ना है तो मैथ्स होना चाहिए, चाहे आप बायो के ही स्टूडेंट क्यों ना हो। इंटरनेशनली यू कैन नॉट अप्लाई इनटू एनी साइंस स्ट्रीम इफ यू डू नॉट हैव मैथ्स इन क्लास 12, यू कैन नॉट अप्लाई। आप डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर 12th पे मैथ्स नहीं है इंटरनेशनली। ये केवल हमारे इंडिया में चलता है कि पीसीबी से काम चल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बायो में ही मैथ्स रिलेटेड कितने करियर्स हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम तो केवल डॉक्टर्स की बात सोच रहे हैं, जबकि बायो में ही मैथ रिलेटेड काम कितना हो जाएगा। और न्यू अपॉर्चुनिटीज तो नए एरियाज में है, न्यू एज करियर्स में है, पुराने करियर्स में तो क्या है, आप भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, राइट। व्हाट इज सो different into it? Where have I followed my passion? Right? So, humanity, अच्छा, commerce can be justified without maths. बहुत इजीली बोल दिया जाता है, commerce can be justified without maths. Commerce में highest paying jobs होती हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। 30 लाख से कम का पैकेज नहीं होता इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सिर्फ एक बात के ऊपर, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। सो कॉमर्स आप ले रहे हैं, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, न्यूमेरिकली यू कैनॉट हैव फन विद नंबर्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप अकाउंट्स करोगे कैसे और मैथ्स कैसे संभालोगे। और उसके बाद अगर कोई आपने लॉ वाला कॉमर्शियल लॉज ले लिया टैक्सेशन का, तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स डेटा साइंसेस भी पढ़ते हैं, बिजनेस एनालिसिस भी पढ़ते हैं आज के टाइम, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं।
जहां ये सब चीजें आ गई, आप बिना मैथ्स के कर सकते हो क्या? बैंकिंग जैसे करियर में, इंश्योरेंस जैसे करियर में, इन्वेस्टमेंट जैसे करियर में, फाइनेंस जैसे करियर में बिना मैथ्स के सोच भी कैसे लिया आप लोगों ने कि यू कैन एंटर इनटू कॉमर्स विदाउट मैथ्स एंड कोई करियर बना के ले जाओगे? फिर ऑफ बीट करियर्स रह जाते हैं, वो फिर कॉमर्स का उससे लिंक ही नहीं है। विदाउट मैथ्स अगर जाओगे कॉमर्स के साथ, तो कॉमर्स पढ़ने का कुछ खास फायदा मिलेगा नहीं। अनदर एस्पेक्ट, ह्यूमैनिटीज हैज लिमिटेड स्कोप। इसके बारे में मैं आपको आराम से अभी डिस्कस करेंगे। ह्यूमैनिटीज का लिमिटेड स्कोप है, ह्यूमैनिटीज का इतना वास्ट स्कोप है कि आप सोच नहीं सकते। जो आज की टाइम्स है ना, आज की जो मॉडर्न टाइम्स है, इट इज गवर्न्ड बाय ह्यूमैनिटीज सो स्ट्रांगली, इट इज इन द एयर। मतलब ह्यूमैनिटीज इज ऑल अबाउट आर्टिस्टिक, लैंग्वेज, राइट, पॉलिसी मेकिंग, लीडरशिप, इस लेवल पर जाकर, राइट, टॉप लॉयर्स, इस लेवल पर जाकर आप अपने करियर्स बनाते हैं ह्यूमैनिटीज में। लेकिन ह्यूमैनिटीज हर एक किसी के बस की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटीज उन लोगों को दे दिया जाता है जिनके मार्क्स कम है। वो क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि ह्यूमैनिटीज में पास होना आसान है। बट मेरा क्वेश्चन पास होने से नहीं है, मेरा क्वेश्चन है एक्सेल करने से। इफ यू आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज, एक्सेल कैसे करोगे? किसी की रीडिंग हैबिट्स है नहीं, ह्यूमैनिटीज लेके करोगे क्या आप? आपसे पढ़ा जाता नहीं, यू कैन नॉट रीड। ह्यूमैनिटीज इज ऑल अबाउट रिसर्च। हिस्ट्री भी पढ़ोगे ना तो वर्ल्ड लेवल पे जाना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ोगे ना तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, ये सब इस लेवल पर जाना पड़ेगा आपको। तो ह्यूमैनिटीज को कोई ऐसे सोचे कि कोई भी कर सकता है? यू नीड टू बी सुपर इंटेलिजेंट जीनियस to do humanities, excel into humanities, and super genius to discover yourself from humanities. Humanities के अंदर से डिस्कवर करके ले जाना कि who you are, who am I, right? So marks have lost significance। भाई ऐसा नहीं है। मैं जब इंटरनेशनल एप्लीकेशंस करता हूं, आई स्टार्ट काउंटिंग मार्क्स फ्रॉम क्लास 9th। एकेडमिक हो तो टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो आप, एकेडमिक नहीं हो तो इंटरनेशनली आप लोगों के लिए चैप्टर्स क्लोज्ड है। अगर आप बात कर रहे हो MIT, स्टैनफोर्ड, येल, यूसी बर्कली, अगर हम इन टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, राइट, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दीज नेम्स आल्सो और नॉट, बट दीज आर द फाइनेस्ट कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंडिया के IITs और IIMs टॉप 200 में भी नहीं आते हैं। वी आर नॉट इवन इन टॉप 200 कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड। टू गेट इन टू दोज कॉलेजेस यू नीड टू हैव सुपर प्रोफाइल। आपकी 9th, 10th, 11th तीनों में एकेडमिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, इवन टू थिंक ऑफ अप्लाइंग। नहीं तो आप कितनी अच्छी प्रोफाइल बना लीजिए, कितनी अच्छी स्किल सेट बना लीजिए, यू विल बी ड्रॉप्ड। सो मार्क्स का अपना सिग्निफिकेंस है टॉप कॉलेजेस के लिए, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू Tier 2 कॉलेजेस अब्रॉड, ठीक है, मार्क्स का उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, फिर वहां और चीजें आ जाएगी। Tier 3 कॉलेजेस भी होते हैं, Tier 4 कॉलेजेस भी होते हैं, एंड आई टॉक अबाउट देम। Careers are only academic. As I told, careers academic बहुत कम होते हैं और नॉन एकेडमिक बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए सक्सेस कैनॉट बी ड्रिवन बाय योर मार्क्स, सक्सेस विल बी ड्रिवन बाय व्हाट यू डू। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपको काम क्या आता है, एंड आप यू विल बी आउट कंप्लीटली बोल्ड कि ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं है। क्या काम आता है? डू वी नो एनी वर्क?
हम 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, बट प्रॉब्ली हमने आज तक कोई भी स्किल ली ही नहीं है. वी हैव नो स्किल्स. और अगर आप बिना स्किल्स के ऐसे ही बैठे रह गए, क्लासरूम खेलते रह गए, कॉलेज आगे जाके वो भी ऐसे ही खेलोगे, मार्क्स मिलेंगे, मार्कशीट्स मिलेगी, उन मार्कशीट्स को लेके आप जाइएगा एम्प्लॉयर्स के पास, नोबडी विल गिव यू एनी काइंड ऑफ जॉब. व्हाई? बिकॉज आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, डू यू नो एनी वर्क? काम आता है या नहीं? एंड कैन यू बिलीव, आज के टाइम में यू हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन स्किल सेट्स, बट वी आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट देम. And we help you build those suitable profiles towards a particular career. आप जिस करियर में जाना चाहते हो, we help you build those skills step by step, so that जिस करियर को आप लेंगे आगे चल के, उसमें ऑलरेडी आपको नॉलेज है, ऑलरेडी काम आता है. So that's the focus of current times. It is work that is more important. It is not what you have studied theoretically which is more important. So it's a practical world bahar. 80% of your, let's say, assessment would be done based on your practicals, and 20% assessments would hardly be on theory. ये न्यू एज एजुकेशन सिस्टम है. क्या इसके लिए हम लोग तैयार हैं? क्योंकि अभी तो एक्सपोजर नहीं है ऐसा. एंड आप ये कहें कि आपको बताया नहीं गया, तो आज के बाद आप ये कह भी नहीं सकते कि आपको पता नहीं था, राइट? और ये किसी को कह भी नहीं सकते आप कि आपको नहीं पता है. यू कैनॉट गिव एनी एक्सक्यूजेस. अदर पर्सन विल से इंटरनेट की एज है, आज भी आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है. व्हाई? बिकॉज यू आर सिटिंग इन मेरिट. रियल कॉम्पिटिशन इज हैपनिंग इन दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो सिटीज. बट भाई कॉम्पीट तो आप लोग भी उन्हीं से कर रहे हो. Even while sitting in merit, you are competing with them. क्या एजुकेशन में कंपटीशन होता है बाय द वे? जी नहीं, होना ही नहीं चाहिए. एजुकेशन इज बाउंड्रीलेस. क्या एजुकेशन को आप, किसी भी सब्जेक्ट को आप बाउंड्री में बांट सकते हो? आप ही तो सिलेबस बनाते हो. आप लोग को शौक है सिलेबस में पढ़ने का, लेकिन एक्चुअल जॉय ऑफ लर्निंग क्या होती है? व्हाट इज जॉय ऑफ लर्निंग? व्हेन यू गो बियॉन्ड सिलेबस. जब आपको पता है कि हाँ, महात्मा गांधी की द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ विद ट्रूथ मैंने पढ़ी और उसमें से मुझे ये बहुत पसंद आया, आई एम कोटिंग दैट समवेयर. मैं पैब्लो की पोएट्री बहुत पसंद करता हूं, तो मैंने वो भी पढ़ी है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. उसको कहते हैं जॉय ऑफ लर्निंग. मैं एक बहुत अच्छा फिल्म क्रिटिक हूं. तो बात ऊपर तो नहीं जा रही है सिर से, समझ में आ रही है बात? आई होप यू आर इंटरनलाइजिंग व्हाट आई एम सेइंग. गुड. या सो अभी करियर्स के ऊपर आ जाते हैं. साइंस बेस्ड करियर्स. साइंस, टेक्नोलॉजी, engineering, maths. STEM, I hope you all know. Science, technology, engineering and maths. So when we talk about these careers, पुराने careers जिनके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी है या थोड़ी बहुत जानकारी भी है, that is engineering में नंबर 1 ब्रांच. आज भी मेरे पास पेरेंट्स लाइन लगा के कहते हैं सर कुछ भी करके सीएस में ही सीट चाहिए. मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि सर यहीं पर जॉब्स है. तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? सिविल इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? उनको अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं हम क्या? या अपनी सोसाइटी को बिल्कुल पोलराइज करके डाल देंगे कि ठीक है, हमारे कंट्री में हम सारे इंजीनियर्स कंप्यूटर साइंस के ही प्रोड्यूस करेंगे और अमेरिकन आके उन्हें ले जाएंगे और हमारे कंट्री का कोई भला नहीं है उसमें.
हम बेस्ट ब्रेन्स को एक्सपोर्ट कर देंगे, अपने ड्रीम्स जॉब के लिए किसी और को दे देंगे। स्टार्टअप्स करने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि रिस्क लेने की आदत ही नहीं है। रिस्क एवर्स लोग हैं, रिस्क लेते हुए डरते हैं। My both children, my son and daughter, right? Both of them are musicians. My son is a Western pianist, and my daughter is a Hindustani vocalist. And both are making careers in respective, branches. I never told them to pursue something, beyond their reach. Because when they were so small, they started preparing themselves for music, and they were really good naturally into it. And they started building their careers to an extent that they did graduation in music. And they are working in music, and they are working also. Can you believe, even if they haven't finished their graduation, they have work with them. They are working now also, during their graduation. Why? Because आपको भीड़ नहीं मिलेगी वहां पर, आपको काम करने की आजादी है, एंड आपको फ्रीलांस, आपको कोई जॉब भी करने की जरूरत नहीं है, आप फ्रीलांस कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, विद एक्सपीरियंस यू विल कीप राइजिंग. तो भाई आप कोशिश करिए दैट आप अपने को देख के करियर चुनिए, राइट? अचानक से नहीं कि कुछ बिकॉज मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए तो आई विल बी गुड इन टू इट. खैर, मेडिकल में एमबीबीएस, बी फार्मा, बीडीएस. एमबीबीएस नहीं हुआ तो चलो कुछ और ले लेते हैं, बी फार्मा कर लेते हैं, मेडिकल स्टोर ही खोल लेंगे. ऐसी सोच पेरेंट्स की. बीडीएस कर लेते हैं, डॉक्टर का नाम लगना जरूरी है, शादी हो जाएगी. सीएस में चला जाएगा बच्चा, कुछ नौकरी ठीक है 8-10 लाख रुपए की मिल जाएगी, शादी हो जाएगी. यही दिमाग में रहता है. करियर के मामले में हम लोग सीधा कनेक्ट कहां करते हैं? शादी से, मैरिज से. क्या करियर इसी काम के लिए रह गया है? राइट? हमारी पढ़ाई इसी काम के लिए हो रही है क्या कि हमको क्वालिफाइड होना है एंड देन सूटेबल मैट्रिमोनियल में हमारा एडवर्टाइजमेंट लग जाए? जितने क्वालिफाइड उतने अच्छा मैच. सारी क्रिएटिविटी हमारी सोसाइटी में भी है, ऐसी बात नहीं है. मतलब कि लोग सोचे कि बाहर होता है, हमारे कंट्री में भी बहुत अच्छी ऐसी फिलॉसफीज हैं, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं. राइट? सो आप लोगों से पूछ रहा हूं भाई, शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैरिज? देखो दोनों दोनों तो शादी और मैरिज दोनों हो गए. सोच में पड़ गए. करियर इंपॉर्टेंट है या शादी? हाँ, देखो अभी भी शादी की आवाज आ रही है. नहीं नहीं कह रहा, नहीं सर नहीं. जब हो जाएगी बेटा पता भी नहीं चलेगा. राइट? सो समहाउ न्यू एज करियर्स की बात करें, अगर न्यू एज करियर्स की बात करें, स्टेम बेस्ड न्यू एज करियर्स, जीन थेरेपी. इतनी डिजीजेस है, उन डिजीजेस की फॉर्मेशंस को रोकना, ऐसे म्यूटेंट्स क्रिएट करना जो उन डिजीजेस को रोक सकते हैं. तो ये रिसर्च का काम है, जीन थेरेपी. रोबोटिक्स, रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, चलो बताओ. नहीं, रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, देख लो आप लोग अब, रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. भाई रोबोट
है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता है, उसमें ठीक है आप प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो, मैकेनिकल से उसकी ड्राइंग कर सकते हो, उसको प्रोडक्ट डिजाइन से उसको क्रिएट कर सकते हो, राइट, लेकिन प्राइमरीली वो उसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, एंड ऑटोमेशन जहां है वहां क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं है। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, क्या ब्रांच है ये जो बैलेंस करते हैं ना, ह्यूमंस का इंटरफियरेंस जो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में हो रहा है, एनिमल्स, अदर स्पीशीज एंड ह्यूमंस, उनमें बैलेंस क्रिएट करना इज द वर्क ऑफ इकोलॉजिस्ट। ये जितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बनते हैं बड़े बड़े, उसमें इकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट वी डू नॉट हार्म दी एनवायरमेंट। मेडिकल इलस्ट्रेशंस, इसको सिंपल तरीके से समझो तो आज की जो लेटेस्ट मशीनरी है, मेडिकल इलस्ट्रेशंस, जितनी जो स्केचेस आपकी अंदर ह्यूमन एनाटॉमी की आप निकाल सकते हो अपनी बॉडी की, राइट, थ्रू सम एक्सीलेंट मशीन्स लाइक एक्सरे मशीन्स और सीटी स्कैनर्स और उससे बड़ी मशीन्स जो आ चुकी हैं, राइट, सो वो मशीन्स के ऊपर काम करना इज मेडिकल इलस्ट्रेशंस। सो ये बहुत बड़ा करियर है। फोटोग्रामेट्री, ये करियर क्या है, फोटोग्रामेट्री, जितनी सैटेलाइट इमेजेस आती हैं उनको स्टडी करना, मैप्स को स्टडी करना, राइट, इज फोटोग्रामेट्री। यू नीड स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स टू परस्यू सच करियर्स। पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग, ये क्या है, व्हाट इज पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग? आप लोग आईपीएल देखते हो, तो जब एक चौका लगता है तो फिर क्या होता है, फायरवर्क्स, राइट, या कोई जीत जाता है तो सीधे आप स्काई में देखते हो ना फायरवर्क्स का फॉर्मेशन। वो जो फॉर्मेशन हो रहा है सही टाइम पर विथ सही कलर्स, वो जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, जो आपको मजा आ रहा है, डिलाइट, द फैक्टर ऑफ डिलाइट, द फैक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट that you are getting is work of pyrotechnic engineers. ऐसा क्यों नहीं होता कि ब्लास्ट हो जाए वहां, राइट, प्रोफेशनल्स हैं, काम कर रहे हैं, उनको पता है किस टाइम पर क्या रिएक्शन होगा, क्या कलर्स कॉम्बिनेशन निकलेंगे, क्या फॉर्मेशंस होंगी, क्या डिजाइन क्रिएट होगा। दिस इज आर्टिस्टिक वर्क ऑफ इंजीनियर्स। फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक्स जानते हैं आप, राइट, क्रिमिनल एविडेंस, एविडेंस पकड़ना, एविडेंस होगा सो यू कैन कैच द कल्प्रिट। सो फॉरेंसिक्स या फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स ये भी होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वर्क ऑफ साइंस। साउंड इंजीनियरिंग, आप लोग को म्यूजिक पसंद है, राइट, लेकिन साउंड इंजीनियर्स जो उनका जो थिएटर का मजा आप लेते हैं, द काइंड ऑफ साउंड दैट यू नो इज अराउंड दैट फिल्म, द बैकग्राउंड स्कोर, राइट, दैट इज द वर्क ऑफ आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर्स। देन क्रिप्ट एनालिसिस, क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, दिस इज वर्किंग ऑन हायर मैथमेटिकल मॉडल्स। जितना जो हैकिंग होती है ना साइट्स की, उन हैकर्स से बचाने का काम क्रिप्टो एनालिसिस है। उन हैकर्स से कैसे बेटर मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर सकते हो आप, दैट इज क्रिप्टो एनालिसिस। सो भाई इन करियर्स में कोई भीड़ नहीं है, नोबडी नोज अबाउट देम। आपको ऐसे करियर्स चुनने चाहिए या सेम ओल्ड वो ऊपर लिखे हुए करियर्स,
फूड साइंसेस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड में कितना रिसर्च हो रहा है, मोर वेराइटीज ऑफ फूड, चैलेंज इज द पॉपुलेशन, हाउ टू फीड दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन. सो फूड साइंस हमेशा स्कोप रहेगा. फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग, कहां जाना चाहते हो आप? फूड एंड न्यूट्रिशन, right? All these careers related to food science. Okay? So I'm being told I have around half an hour. I have half an hour to complete this talk. My talk might extend, but I will try to complete this by 9. Right? So STEAM. अभी मैंने STEM careers बताए थे. थोड़ा सा फास्ट सुनेंगे आप, थोड़ा सा फास्ट, राइट, एंड अंडरस्टैंड भी कर लेंगे. मैं आपको थोड़ा स्लो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद आपको समझने में आसानी हो जाए, राइट. बट आई विल ट्राई टू स्पीक लिटिल फास्टर नाउ एंड एट द सेम टाइम यू ट्राई टू कैच अप. ओके, सो स्टीम बेस्ड, स्टेम की मैंने बात करी थी, उसमें एक फैक्टर मैंने और ऐड कर दिया, आर्ट्स. सो आर्टिस्टिक करियर्स विथ साइंस, साइंस एंड आर्ट टुगेदर. सो व्हाट करियर्स? मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, यहां स्केचिंग की जरूरत पड़ती है. सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉलिड वर्क्स, सॉफ्टवेयर्स हैं, कैड कैम, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, राइट. यू नीड टू वर्क ऑन आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर्स. सो आर्किटेक्ट, वेबसाइट ऐप डिजाइनर, ये क्रिएटिव काम है, राइट. मॉडर्न अर्बन प्लानर, how to plan cities, how to plan societies. ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है जहां पर भी मान लीजिए वो जो आपकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उन इक्विपमेंट्स को यूज करके सही ड्राइंग निकालना, क्योंकि जहां चोट लगी है किसी को, उसको बिल्कुल सही एंगल से सही तरीके से प्रेजेंट करना डॉक्टर के सामने. सो ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट को भी यू नीड टू हैव दैट आर्टिस्टिक वर्क. सो यू विल गो देयर. बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यू ऑलवेज नीड स्केचिंग, राइट. यू ऑलवेज हैव टू हैव स्केचेस. आप बायोलॉजी में देखते हैं ना, डायग्राम्स बनाते थे, राइट, या बनाते हो, अभी तो आप 10th में ही हो, राइट. सो बायोमेडिकल इंजीनियर्स. प्रोडक्ट डिजाइनर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स कौन होते हैं? Those who can make anything out of any material, metal, fire, right, wire, right, paper, anything, cloth. Product designers, right, anything that you can design and create. Then animators, films देखते हो आप, animation पसंद करते हो, बताने की जरूरत नहीं है, right. Forensic psychology. So forensic psychology में again you need drawings, राइट. सो यहां पर भी बहुत वैल्यूएबल है आर्ट बेस्ड साइंस करियर्स. देन कॉमर्स बेस्ड करियर्स, जैसे मैंने बताया कि मैथ्स स्ट्रांग चाहिए, राइट. कॉमर्स के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस सबसे बड़ा इनटेक है कॉमर्स का, राइट. एक्चुअरीज, एक्चुअरियल साइंसेस, वैसे तो पीसीएम वाले भी ले सकते हैं, बट एक्चुअरियल is primarily a study of maths, mathematical modeling for risk analysis. जितने भी बड़े बड़े शिप्स आप देखिए ट्रेड कर रहे हैं, जो पोर्ट से आगे जा रहे हैं, उनके ऊपर कितना रिस्क होता है, कितना सामान होता है, कितनी कमोडिटीज होती हैं, तो कितना इंश्योरेंस पे करें ताकि वो रिस्क एश्योर हो जाए. तो मैथमेटिकल मॉडल कैलकुलेट कैसे होता है, दैट इज द वर्क डन बाय actuaries, right. So fintech, financial technology, आप AI ड्रिवन है. फिनेंस में भी आप देखिए छोटी छोटी कंपनीज आ चुकी हैं जो आपकी स्टॉक्स की ग्रोथ देखती हैं, जो ट्रेडिंग एनालिसिस होता है, जो एनालिसिस होता है, अब वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के वे में कन्वर्ट हो गया है. तो जितनी फिनटेक फर्म्स हैं, जैसे स्मॉल केस, ग्रो,
ये कंपनीज क्या है? दे आर फिनटेक कंपनीज, दोज हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ कस्टमर्स. सो कैसे इन्वेस्टमेंट हो और ऑटोमेटिकली कैसे वो इन्वेस्टमेंट राइज हो, ये वर्क पूरा का पूरा टेक्निकल हो चुका है और ये काम टेक्नोलॉजी कर रही है विद द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू इट. बिजनेस एनालिस्ट डेटा के ऊपर जो काम करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि सही डेटा प्रोवाइड करे टू दी फंक्शनल मैनेजर्स लाइक मार्केटिंग मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स, राइट. उन लोगों को सही डेटा प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी प्लानिंग ठीक से कर पाए, राइट. तो ये एनालिसिस का वर्क पूरा डेटा ड्रिवन है, मैथमेटिकल है. कॉर्पोरेट लॉयर्स में भी आप देखिए टैक्सेशन का काफी रोल होता है, तो मैथ्स का होना अच्छी बात है. सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी और वो प्रोडक्ट किस मार्केट में लॉन्च करा जाए, ऐसे डिसीजंस लेना इज द वर्क ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. किस कलर की कार कहां पर किस सिटी में लॉन्च होनी चाहिए, किस प्राइस पे लॉन्च होनी चाहिए, ये पूरा एनालिसिस चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट करते हैं. दे नीड टू बी मैथमेटिकली वेरी वेरी स्ट्रांग. Similarly, CSCS, you all know about it, right? Investment banking, investment बहुत बड़ा फील्ड है, one of the biggest field. बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक बाइन, राइट, BCG, मैकिन्जी, राइट, ये सब बड़ी बड़ी फर्म्स इन्वेस्टमेंट में डील करती है. वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, आप देखिए जितना गूगल को यूज करके, एसईओ को यूज करके कैसे हम अपने नेम को कैसे हम ऊपर लेके जाते हैं कस्टमर्स तक, राइट, इज द वर्क ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. आप फेसबुक एड्स देखते हैं, उसी तरह का फिर एड दूसरा आना शुरू हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट. सो ब्रांडिंग इज बेसिकली शोइंग द आइडेंटिटी. एक ब्रांड की अपनी आइडेंटिटी होती है, राइट. अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्पोर्ट आइडेंटिटी वाले ब्रांड्स अलग हैं. आप ब्यूटी कॉन्शियस हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलग हैं, और वो भी उसमें पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जिससे आप अपने आप को एसोसिएट करते हो, राइट. सो यू हैव HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट. ये सारा काम, पूरा का पूरा काम इज ऑल ड्रिवन बाय कॉमर्स स्टूडेंट्स, एंड मैथ्स इज हाईली रिकमेंडेड. एक और रीजन बता दूं मैथ्स क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि आगे चल के सपोज आपने BBA कर लिया या कोई ऐसा कोर्स कर लिया, कॉमर्स के बाद BCom कर लिया, राइट, एंड आगे आप MBA करने जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए भूलिएगा नहीं ये बात कि आपका जो कंपटीशन है, जो आपसे कॉम्पीट करेंगे, दे विल बी IITians. घबराइए नहीं. कंपटीशन तभी लड़ पाओगे जब आप इंफॉर्मेशन रखोगे, एंड उसमें भी हमारे पास स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन होती है. वी गाइड पीपल बेस्ड ऑन इंटरेस्ट. IITian भी जाएगा तो कहां जाएगा? फाइनेंस में जाएगा, राइट. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में तो नहीं आएगा वो, ठीक है. तो मुझे मालूम है कैसे एक स्टूडेंट को उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से मूव करना है, जहां कंपटीशन स्ट्रैटेजिकली हम कट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग? सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है दैट वी काउंसलर्स कैन हेल्प यू विद, राइट, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस अबाउट योर करियर. सो दिस इज डन. नेक्स्ट, biology based new age careers. 20 minutes I have, right. Agriculture technology क्या होती है? जितने इक्विपमेंट्स हम फार्मिंग में यूज करते हैं, है ना, जितने इक्विपमेंट्स हम फार्मिंग में यूज करते हैं, चाहे वो पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज करते हो या हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हो, वो टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूसेज इज एग्रीटेक. यू कैन डू बैचलर्स इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यू कैन डू बैचलर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी. मेडिकल टेक्नोलॉजी आज इक्विपमेंट्स के बिना नहीं होती है. यू नीड टू नो हाउ टू यूज दोज हाई एंड मशीन्स. सो क्यों हम उस करियर में नहीं जा सकते? ये बायो बेस्ड करियर्स हैं. विदाउट बिकमिंग अ डॉक्टर, राइट, you can be a technician. Food and nutrition,
सबको जरूरत पड़ेगी. Everybody is losing on lifestyle, right? Biotech. Biotech is a growing field. Research on diseases, how we can have better drugs, how we can have better medicines. Biotech. Healthcare. Healthcare is something which is a prime goal of any government. Public healthcare से लेकर के private healthcare तक amazing scope. Amazing scope. Then environment, waste management. एक मैं बात बता दूं, जितने मैंने एरियाज आपको बताए हैं, ये सारे के सारे एरियाज में स्टार्टअप्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं. You have startups in each category and they are all funded by government. आपका अगर आइडिया है कोई, इन जितनी भी कैटेगरीज मैंने अभी बायो बेस्ड बताई हैं, बायो बेस्ड स्टार्टअप्स आर अवेलेबल. आप नए नए स्टार्टअप्स में काम कर सकते हो फ्रॉम दिस एज. आई कैन पुट यू इनटू दोज शॉर्ट ट्रेनिंग्स विद दो स्टार्टअप्स. आप जाइए, जब आपकी छुट्टियां हो आप जाइए, 7 दिन 8 दिन लगा के वापस आइए एंड सी कैसे स्टार्टअप्स में काम होता है, राइट? और इन्हीं कैटेगरीज पे अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो, राइट? नॉन मेडिसिन में क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स चाहिए. जितनी इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी उतना इसका रिक्वायरमेंट बढ़ता ही जाएगा. सो हेल्थ एंड सेफ्टी. जियोग्राफर मैपिंग, सैटेलाइट इमेजेस, राइट, उसके ऊपर काम करते हैं. कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट. कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट इज अ मैथमेटिशियन हु हैज अ बायो बैकग्राउंड. जो बायो बेस्ड डेटा होता है उसके ऊपर रिसर्च करना, उस डेटा से कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग लेना, राइट? हॉस्पिटल मैनेजमेंट. बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बिना मैनेजमेंट के ये नहीं चल सकते. यू नीड टू हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट पीपल टू मैनेज दोज हॉस्पिटल्स ऑल्सो. और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता मैं जिंदगी भर डॉक्टरी करता रहूं, मुझे कहीं ना कहीं अपना हॉस्पिटल भी चाहिए. ड्रीम होता है हर डॉक्टर का, पूरा नहीं हो पाता है बिकॉज इट रिक्वायर्स मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, राइट? नेक्स्ट, ह्यूमैनिटीज बेस्ड करियर्स. आई टोल्ड यू ह्यूमैनिटीज बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है. ह्यूमैनिटीज में अगर हम जाएंगे, पहली बात, या तो आप में आर्टिस्टिकनेस, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चाहिए मुझे. आप क्रिएटिव हैं. दूसरी बात, आपकी लैंग्वेज पे स्ट्रेंथ. कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, वॉट एवर, बट वॉट आई नीड इज अ कमांड ऑन लैंग्वेज, some reading habits or potential that you can develop those reading habits. If you can develop those reading habits, then fine arts and design, commercial arts. आप ये देख लीजिए कि एक अगर आप अच्छा फाइन आर्टिस्ट बन सकते हैं, राइट, एंड यू हैव एक्सीलेंट पेंटिंग्स, आज के टाइम एग्जीबिशंस लगा लीजिए, एक अच्छी सी पेंटिंग की कीमत लाखों में चली जाती है, right? It all depends upon the idea that you are drawing, right? Hospitality, जितनी होटल मैनेजमेंट सर्विसेज है, एयरलाइंस है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, ये सारा एरिया सबको पसंद है. सबको वेकेशंस पसंद है, सबको घूमना पसंद है, 5 स्टार्स में जाना पसंद है, सबको फूड पसंद है, culinary, सबको पसंद है ये चीजें, right? So imagine the kind of career that you can have in hospitality. Visual merchandising, display of products on website or visually on a showroom. कैसे visually हम products को display करें, ये भी एक visual merchandiser का काम होता है, जो आपके display को ऐसा बनाए कि कोई विंडो शॉपिंग ना करे, कोई आ ही जाए और आपके प्रोडक्ट्स को बाय कर सके. So how to make it attractive? Culinary arts, food, travel tourism, graphics, media, filmmaking, journalism, public relations, advertising, event management.
छोटे से छोटे इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज, किट्टी पार्टीज से लेकर के, शादियों से लेकर के, कॉर्पोरेट इवेंट्स से लेकर के, जॉब आई वुड से जॉब एग्जीबिशंस, और ये जितने भी बड़े बड़े जो आपके जो शोज होते हैं, फिल्म शोज या सेलिब्रिटी शोज, ये सारे इवेंट्स दे ऑल आर कवर्ड अंडर इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, ये बहुत बड़े करियर हैं. I don't have time to discuss, but then if you would like sometime individually, I will discuss these things with you. Then music production, bachelors, you can do bachelors in music production. You can become A.R. Rahman. Yes, if you have the ability to, go artistically and develop music production. Vlogger, you can do vlogging, you can be a blogger, you can write, you can video shoot, you can do web series. OTT प्लेटफॉर्म्स पर कैसे काम होता है, कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे कास्टिंग होती है, ऑल दीज वर्क्स आर डन बाय आर्टिस्टिक डायरेक्टर्स. पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो किस बिहाफ पे बनती है और कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, उनका ऑडिट कैसे होता है. बड़ी बड़ी कंपनीज, मैकेंजी, राइट, दे पिक पीपल फॉर पब्लिक पॉलिसी. फेसबुक जैसी कंपनीज पब्लिक पॉलिसी के ऊपर रिक्रूट करती हैं. टीवी प्रोडक्शन, लॉयर, क्यूरेटर्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशल मीडिया साइकोलॉजिस्ट, एडिटर्स, क्रिएटिव राइटर्स, शेफ्स, ये सारे करियर्स आर आर्टिस्टिक. एंड इसके अलावा भी देयर आर मेनी मोर करियर्स इनटू ह्यूमैनिटीज. अभी मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक करियर्स में जा ही नहीं रहा हूं, नहीं तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी ऐड करो, और कितने करियर्स ऐड करना चाहते हो आप यहां. राइट, यू हैव मीन्स plenty of careers that you can manage if you are good with creativity as well as your language. So ये 6,500 careers हैं, and we are only aware about 10 to 12 careers. Next. So this is because of lack of career counseling. We don't have awareness. So career counseling जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, आप लोग के लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है. दे शुड नो कि कितने करियर्स अवेलेबल हैं. नेक्स्ट, क्या नाउ व्हाट वी डू. I have 10-11 minutes, so 5 minutes I'll complete. These are the top colleges for which we streamline you, we prepare you, right? We plan the strategy for you, how you will execute preparations for IITs, NID, IIMs, NLUs, National Law University, CEPT is Center for Environment Planning and Technology. You have NIFT, IIFT, Indian Institute of Foreign Trade. You have Xavier's. Then you have ISI, Indian Statistical Institute. Then you have IHM's, Institute of Hotel Management, Oberoi Center for Learning and Development, IIT Chennai. IIT Chennai offers 5 years program in humanities. IIT Chennai offers 5 years program in humanities, सीधे MA in humanities, social sciences में. So IIT कराता है वो TIS, Tata Institute of Social Sciences. These are creme de la creme, some of the finest colleges that you all can prepare for, and we help you to prepare or reach into these colleges based on your individual potential. हम सबसे पहले आपको काउंसिल करेंगे इंडिविजुअली, ये देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर ये भी देखेंगे आप टीयर 1 में आ सकते हैं या टीयर 2 में आ सकते हैं, 3 में या 4 में आ सकते हैं, बेस्ड ऑन योर एबिलिटी. सो टीयर 2 में क्या है? SP Jain, क्राइस्ट, सिम्बॉयसिस, अशोका, फ्लेम, क्रिया, प्लाक्षा, शिवनादर. These are some of the top class institutions, finest institutions that you will get to know by these names. शायद सुना नहीं होगा आपने ये नाम, लेकिन if you will try to know more about them, I will be able to tell you.
टियर 3 यू हैव दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई, ये सब आउटडेटेड यूनिवर्सिटीज हैं मेरे हिसाब से आज के टाइम में। ये सब आपको डिग्री बांटने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं। दे विल नॉट गिव यू एनी स्किल्स। आप बीए कर लीजिए, वहां से बीकॉम कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, बट नो रिक्विजिट स्किल्स, क्योंकि सुबह 9 बजे कॉलेज शुरू होता है, 11 बजे ऑफ हो जाता है, स्टूडेंट्स का पता नहीं, टीचर्स का पता नहीं। सो दिस इज द कल्चर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। बट कुछ कॉलेजेस अच्छे होते हैं उसमें, इसीलिए हम उसको टियर 3 में रखते हैं, क्योंकि कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं वहां। सो वो वहां पहुंचने के लिए 1% लोग पहुंचते हैं वहां। सो मैं उसके लिए उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा। बाकी कॉलेजेस आर नॉट वर्दी। सो ये सब है। इसके अलावा टियर 4 में फिर कुछ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। बहुत लोग इंजीनियरिंग करने यहां जाते हैं, बट इसके ये लास्ट है, इसके नीचे जाके कुछ खास कॉलेजेस बचते नहीं है। राइट। सो ये सब आपकी लेवल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, वी ऑल्सो हेल्प यू इन स्टडिंग अब्रॉड। 10th क्लास से मैं आज इंटरैक्ट कर रहा हूं, तो ये परफेक्ट टाइम है आप लोगों के लिए जो लोग स्टडी अब्रॉड को कंसिडर करना चाहते हैं, बिकॉज 9th पास इज व्हाट वी नीड टू स्टार्ट। यू हैव जस्ट पास क्लास 9th। सो जिनको स्टडी अब्रॉड का जरा भी सोचना है, so this is the perfect time to plan for next 3 years, and we will make the route. You will have to execute and you will reach into these colleges like tier 1, 2, 3, 4. You might reach into any of these. मैं इनके नाम ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको वैसे भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, बट यहां MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, यूसीबी, यूपेन, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इनका कोई मुकाबला नहीं है। दे आर दी वर्ल्ड्स बेस्ट। एंड इसमें आने के लिए आप 9th क्वालिफाई कर चुके होने चाहिए। आगे का प्लान हम आपके साथ पर्सनली प्लान कर सकते हैं। Those who have interest to go into these universities. One of my student recently qualified for Kelly Business School and has received $70,000 as a scholarship. Right. You come and I'll show you the letter that he has received and see the kind of cash rich universities you have in US. Scholarship मिल जाती है अगर आपकी प्रोफाइल और आपके एकेडमिक्स बहुत बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वी प्रिपेयर यू फॉर। इनके सभी कॉलेजेस के काफी जगह एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे एग्जाम्स लाइक IIM इंदौर के लिए IP मैट, बाकी कॉलेजेस के लिए CUET, राइट, NPAT नार्सी मोंजी के लिए, सिम्बॉयसिस के लिए सिम्बॉयसिस एंट्रेंस टेस्ट, NIFT, NID, IHMs, CLAT, LSAT, Xavier's, मुंबई यूनिवर्सिटी, IAFT फॉरेन ट्रेड, UCDIS फॉर डिजाइन, IIT बॉम्बे के लिए। सो ये सब प्रिपरेशंस we do at Young Achievers. We prepare you for various careers on Saturday, Sundays. So Saturday, Sundays, 2 days we take wherein we prepare you for these. Abroad में extra preparations चाहिए होती है SAT के लिए, Scholastic Aptitude Test होता है एक, और कुछ इसमें APs होते हैं, Subject Tests होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं आपको। Then essays होते हैं, Statement of Purpose होती हैं आपकी, Letter of Recommendations होती हैं, राइट, प्रोफाइल बिल्डिंग होती है, और आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं। ये सारा स्टडी अब्रॉड के अंदर काउंट होता है। एंड कॉमन एरियाज कुछ होते हैं जो सभी को एग्जाम्स देने ही पड़ते हैं अब्रॉड के लिए, दैट इज IELTS, TOEFL, ये देना होता है। स्कॉलरशिप एसेज लिखने पड़ते हैं, LORs और एकेडमिक्स, ये सारी चीजें आपको साथ साथ प्रिपेयर करनी होती है। दिस इज व्हाट वी ट्रेन यू फॉर right after class 10th, or when you are in class 10th you can start preparing yourself for these things. And this is what we have seen abhi recent times mein, every year we are getting roughly around 100 plus selections in some of the finest colleges, and I am talking about the tier 1 levels. So 25 years we have created a huge benchmark of success around us. We have people from IITs, we have people from IIMs, we have people from all those top universities abroad also. And NIFT
और नॉन कन्वेंशनल करियर्स में IHMs में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, यू नेम द करियर and you will find references of our students, working everywhere in India or abroad. So that is the success we have created in the last 25 years. Next, as far as our presence is concerned on social media, you can find me with Love Jain Career Counselor. आज का भी जो सेशन है ये YouTube पर चला जाएगा. You can always view this again and you can make your parents also listen to this, what I am talking, right? So that you can reconfirm these things, whatever I have told. So you have Love Jain Career Counselor as my YouTube page, और Insta पर जाना है Young Achievers Merit, और Facebook पर जाना है तो Young Achievers Learning Center is the name. So this is what you can see, or you can simply Google my name Love Jain, you will find me on the first slab.